Hello and welcome to Kismat Ke Sitare, and this is Sandeep Kochar. We were discussing about your stones, your lucky stones, and how you should wear it, where you should wear it, and how good it would be. And today we'll discuss about Librans. Tula Rashi, the most lucky 7 hai basically, that is the 7 number Rashi, and they are the most passionate people on earth. They always want to enjoy their life in every possible way. That is the best thing about you. So that means we need to learn from them then how to live your life. That is the best thing. So one has to have that passion, which is very important. So Librans, they can no prizes for guessing. The best stone which is good for you is diamond. Diamond you can wear it on right hand middle finger. It is good for you Friday morning within first hour of sunrise. So that is a Shukl Paksh, Shukr ki hora, the first hour. So it would be good for you. It would be good for your luxuries, for comfort, for health, for passion, for luxuries, and whatever is beautiful, whatever is creative, it would be good for you. A lot of film stars, they have good Venus in their horoscope. That's the reason they have become celebrities in the field of talent. So that is something which would come to you naturally. At the same time, the other stone which you can wear is blue sapphire. Because blue sapphire is a planet which rules, Saturn is a planet which rules your 5th house lord, the house of luck, the house of learning, children, education, getting more recognition, and is a lot of 4th house as well, the house of fixed assets and properties. Alone, it will give you the Raj Yog. They call it the Yog Karaka planet, which is beautiful. So you need to check it, keep it under your pillow. I have described many times. That's the right way. 3 days you have to look for the energies, how you are feeling, good or bad. So you need to check on that, and then you can wear it on right, on middle, left hand middle finger on Sunday. That would be good for you. And the last but not the least is the emerald. So green emerald, always middle finger. It will be good for you, for your luck. It will be good for your planning, for communication, for friendship, and even for your finances, for trading, for sales, banking, accountancy, speech, planning. So all those things ruled by Mercury, and obviously the luck would definitely be with you. So you can wear these 3 stones all the time, but you need to check the horoscope if the placement is right, if the planets are placed at the right place, if the dashas or antadashas are running. So all those things you need to check with your with your astrologer, or you can email it to us, and I will definitely take your call or your SMS basically, email basically, and I will definitely define it and will help you to understand what are good planets for you and if these stones can be good for your life. तो ये 3 स्टोन है लिब्रा असेंडेंट के लिए, डायमंड, एमराल्ड और ब्लू सफायर, जिसको नीलम कहते हैं. इसको आप पहनिए सही तरीके से, सही वक्त पे, अपने हॉरोस्कोप को जांच करवा के, और उसके बाद ये तीनों प्लैनेट आपकी जिंदगी को स्ट्रांग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे. तो ये तो बात हुई लकी स्टोन्स की, और अब शुरू होता है हमारा वो सिलसिला जो एक एक राशि पे आता है और आपको बताता है कि आज को आपको क्या करना चाहिए और किन चीजों से बच के रहना चाहिए. एरियंस की शुरुआत हो रही है प्यार और मोहब्बत के साथ. आपको दुनिया की परवाह नहीं है, बिकॉज बहुत डेयरिंग है आप, और आज आप सबके सामने इजहार करने वाले हैं. आई थिंक इट कुड बी समथिंग गुड, एक्साइटिंग ऑल्सो, बिकॉज शादी का भी वक्त चल रहा है, तो वाई नॉट. प्रपोज नहीं करोगे तो होगा कैसे, विच इज वेरी गुड. गवर्नमेंट से जुड़े चीजों से फायदा हो सकता है. जो लोग हो सकता है बॉसेस आपके सपोर्टिंग हो जाएं, ये भी एक अच्छी बात है. अथॉरिटी, पावर और पोजीशन, जो कामना आपके मन में हमेशा रहती है, कामना मिलने के बावजूद, वो आपको जरूर आज मिल जाएगी. इट कुड बी ए ब्यूटीफुल डे फॉर यू. वृषभ राशि यानी टॉरस, टॉरियंस के लिए आज सोच रहे हैं आप कि कुछ कर लूं, और मुझे लगता है कि आज आपको गुस्सा आ रहा है. देखिए, ये मन की सोच है. इमोशनल इम्बैलेंसेस, इट इज समटाइम इट क्रिएट हिंड्रेंसेस इन लाइफ. तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, ट्राई टू बी हैप्पी. इग्नोरेंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो छोटी छोटी बातें में हमारी ज़िंदगी को डिफिकल्ट कर देती हैं. तो प्लीज़ कम आउट ऑफ इट. और क्रिपिंग एबिलिटी भी आपके अंदर है, कुछ दिनों से चल रही है, नवंबर तक चलेगी. तो प्लीज़ अपने आप को बदलिए. फाइनेंशियली चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा तालमेल आपको बिछाने की जरूरत है. रेस्ट एवरीथिंग इज गुड. मिथुन राशि यानी जमनाई, जमनाई के लिए आज आपके नेबर्स आपके काम आने वाले हैं. आप तो जानते ही नहीं अपने नेबर्स को, तो प्लीज़ अपने आप को बदलिए, अपने कलीग से अच्छे माहौल क्रिएट करिए. ट्राई टू मेक देम फ्रेंड्स एंड दैट वुड बी गुड फॉर यू. गुड टीम मीन्स गुड रिजल्ट. At the same time, you could be getting gains because of your communication, because of your planning, but you need to think before you speak. ऐसा ना हो कि मिस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए. और आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं, या आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपनी ज़िंदगी को प्लान करें, तो आप हमें ईमेल लिखिए. अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस के साथ अपना सवाल लिखिए और ईमेल कर दीजिए astro@zenetwork.com पर. और पहला ईमेल है हमारे पास गंगाधर मोहंटी का.
जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1972 एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 11:30 PM। एंड गंगाधर मोहंती जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ वो कैसे प्लान करें, हाउ वुड बी हिज कमिंग ईयर्स एंड व्हाट इज गुड फॉर हिम एंड हाउ वुड बी हिज फ्यूचर। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और देखिए 39 के हो चुके हैं गंगाधर मोहंती। आप ये हॉरोस्कोप में कई बार इंसान को आराम से चलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मरकुरी के 17 साल की दशा आपकी एंड हो रही है सैटर्न के साथ, और ये एंड होगी अक्टूबर 2013 तक। तो तब तक आप फ्लो के साथ चलिए, और थिंग्स आर नॉट वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज सैटर्न आपका नवांश में डेबिलिटेटेड है, जिसकी वजह से मज़ा नहीं आ रहा होगा। दूसरी बात यह है कि केतु की दशा शुरू होगी, केतु 8 में घर में प्लेस्ड है और 7 ईयर्स की दशा है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे वो टाइम है जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सिक्योर करना है, कोई लोन नहीं लेना है और किसी भी रिस्क में नहीं जाना है। ये थोड़ा सा वक्त आपको निकालना होगा। उसके बाद शुक्र की दशा है, दैट वुड बी वेरी गुड 20 ईयर्स, बट वो आगे की बात है। यू आर ए पर्सन विल ऑलवेज फील द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद विल ऑलवेज बी विद यू। सो कीप डूइंग योर डेली प्रेयर्स, लक वुड सपोर्ट यू। बस ये जो टर्बुलेंस थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ आपका रुझान होना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी प्रेयर्स, जिसको इबादत कहते हैं, यू नो दैट विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, दैट विल, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो सितारों से ऊपर कुछ तो है, लकीरों से ऊपर कुछ तो है, तो कुछ तो है। यानी अगर इंसान ऊपर से कनेक्ट होता है तो ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। एक आप रूबी पहनिए, एक येलो सफायर पहनिए। गंगाधर मोहंती जी, डोंट वरी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हमारे पास ईमेल है सचिन हामा का, और सचिन शर्मा है बेसिकली। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1986, टाइम ऑफ बर्थ इज 11:49 AM। और सचिन शर्मा जानना चाहते हैं कि करियर के बारे में और फाइनेंसेस के बारे में, और मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बिल्कुल 25 आपकी हो चुकी है सचिन शर्मा जी, और राहु की दशा भी चल रही है। राहु आपके सेकंड हाउस में प्लेस है, हाउस ऑफ फाइनेंस। 8वें घर में केतु के साथ मून है, जिसको राहु देख ही रहा है, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इंसान इमोशनली ड्रिवन या इमोशनली अनस्टेबल थोड़ा सा हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्क करने की जरूरत है। शनि की 7.5 भी आपकी चल रही है, लेकिन सिंहासन योग आपके हॉरोस्कोप में, इट इज एक्सचेंज बिटवीन सैटर्न एंड मार्स विच इज वेरी गुड। यू हैव टेक्निकल नॉलेज, आप जैसा इंसान इंजीनियर बन सकता था या लॉयर बन सकता था, बट यू आर ए वेरी गुड कंसल्टेंट ऑल्सो। 9th लॉर्ड इन 9th हाउस, लक सपोर्ट आपको करेगा। हॉरोस्कोप में पोटेंशियल बहुत है, खाली एक चीज आपको जो वर्क करनी है वो है आपके इमोशंस, और जिस दिन आप उसे बाहर आ गए, और तरीका उसका एक ही है, रोज बताया जाता है, बार बार ऐसा लगता है कि कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी में बेच रहा हूँ कि मेडिटेशन करो, तो प्लीज ट्राई टू डू दैट, वही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। किसी भी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यू विल बी हैप्पी एंड कंटेंट। एक एमराल्ड बनिए, एक डायमंड बनिए सचिन शर्मा। हैव फेथ इन गॉड, आई विश यू ऑल द बेस्ट। कर्क राशि यानी कैंसर। कैंसरियन आज जो है वो कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पे थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी चाहिए। नीड टू फोकस मोर ऑन योर वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड, थोड़ी सी उसको रीचेक करने की बात है, नेवर माइंड। एट द सेम टाइम यू कुड बी गेटिंग सम गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर वर्क एरिया, दैट विल डेफिनेटली ओपन न्यू एवेन्यूज, which is a good sign as well. And I think people who are connected with media, or people who are into writing, or people who are into accountancy, I think they would be doing something good today. सिंह राशि यानी लियो। लियोज के लिए आज आई थिंक इट शुड बी अ गुड डे, अ पॉजिटिव डे। द ओनली थिंग इज यू नीड टू चेक योर एनर्जी बिकॉज देयर कुड बी सम एग्रेशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरी बात है कि लक सपोर्ट आपको करेगा, विच इज़ वेरी गुड। अपने फादर की बातों को इग्नोर ना करें, बिकॉज वो एक्सपीरियंस है उनके पास जो आपको आएगा 20 साल के बाद, तो प्लीज़ ट्राई टू टेक दोज इनपुट्स दैट वुड बी गुड फॉर यू। कन्या राशि यानी वगो। वगोस के लिए आज ओवरसीज ट्रैवलिंग हो सकती है, या वहाँ से आपके कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है, या हो सकता है कि आज आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो ये थोड़ी सी तवज्जो होगी क्योंकि चांद वहाँ पे प्लेस्ड है। अदरवाइज मेरे हिसाब से चीज़ें ठीक हैं, खाली आपको थोड़ा सा सोच के बोलना है, प्लान करके चीज़ों को करना है, क्योंकि मरकुरी जो जिसके लिए आप जाने जाते हैं वो वीक चल रहा है, डेबिलिटेटेड है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको गिव अप नहीं करना है, तो थोड़ा सा हौसला, इट विल हेल्प यू टू ग्रो। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में आपकी मनचाही चीज़ें कब मिलेंगी, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस के साथ अपना सवाल लिखिए और ईमेल कर दीजिए astro@zenetwork.com पर। और अब ईमेल है हमारे पास श्री दुंगरगढ़ का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1982 एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 3:44 AM। एंड श्री दुंगरगढ़ जानना चाहते हैं कि इनकी लाइफ कब बदलेगी और आने वाला समय कैसा रहेगा, एंड व्हेन ही विल बी हैप्पी। बिल्कुल देखिए, लाइफ में हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और ये डिपेंड करता है कि तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। तो कई बार क्या होता है कि हमको चाहते हैं हमें नहीं मिलता है, लगता है कि अपना तो बैड लक ही खराब है, बट ऐसा नहीं है। ओनली गॉड नोज द बेस्ट कि व्हाट इज गुड फॉर अस। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। आपकी मून साइन स्कॉर्पियो में है,
तो स्कॉर्पियंस वाले ने इतने ईमेल किए हैं पिछले तकरीबन 7 महीने से, और अभी 8 महीने और हैं, नवंबर तक ये दशा चलने वाली है। राहु का ट्रांजिशन ओवर योर मून विच इज़ मेकिंग यू नेगेटिव। समझ में नहीं आ रहा है क्यों, क्या, कब, कहाँ, ऐसे चल रहा है बेसिकली। तो आप टेंशन मत लीजिए। शुक्र की दशा आपकी चल रही है। शुक्र आपका 9th लॉर्ड है हाउस ऑफ लक, 2nd लॉर्ड है हाउस ऑफ फाइनेंस। इट वुड बी और वेरी गुड टाइम। द ओनली थिंग इज इमोशनल थिंग। बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, आपको वहाँ जाना है जहाँ तक आज तक कोई नहीं गया, चाहे वो मैन हो या विमेन। तो दैट इज योर एस्पिरेशंस, बट वक्त से पहले वो नहीं होता है। मुझे लगता है कि यू आर दशा हैज यू हैव रीच द राइट दशा, बट द ट्रांजिशन ऑफ राहु लेट इट बी ओवर फ्रॉम नवंबर दिस ईयर एंड देन इट विल ओपन योर एवेन्यूज। आपका परमानेंट जो एसोसिएशन है वो ओवरसीज से के साथ रहेगा। एमरल्ड पहन सकते हैं आप, डायमंड पहन सकते हैं आप। दिस इज ए गुड चार्ट श्री डूंगागढ़ एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो। कीप हेल्पिंग नीडी एंड पुअर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अब हमारे पास ईमेल है अंकुश का, और अंकुश की डेट ऑफ बर्थ है 12th of March 1984 एंड टाइम पर 7:30 इन द मॉर्निंग। और अंकुश जानना चाहते हैं अपनी मैरिज के बारे में और करियर के बारे में। दो ही चीज़ें हैं ज़िंदगी में, अच्छी शादी हो जाए आपकी तो निकल पड़ती है, और अच्छा करियर बन जाए तो फिर सब कुछ इंसान मैनेज कर ही लेता है। 27 आपकी हो चुकी है अंकुश। शनि की दशा आपकी चल रही है। शनि एग्जॉल्टेड है हॉरोस्कोप में, 8th हाउस में है, नवांश में डेबिलिटेटेड हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है। और शनि में केतु की दशा भी बाकी है जून 2013 से। उसके बाद वीनस की दशा आएगी, दैट वुड बी ए गुड टाइम, क्योंकि शनि और वीनस में एक्सचेंज है। यही है सबसे बड़ी कहानी आपके हॉरोस्कोप में। वो 2-3 साल आपकी ज़िंदगी के वन ऑफ द बेस्ट होंगे, 14, 15, 16, 17 इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट फेज फॉर यू। तो थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी तसल्ली आप रखिए। शादी करना चाहते हैं या तो मई तक कर लेंगे, नहीं तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। और वैसे तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट हैं, लेकिन खुद रॉन्ग डिसीजन लेने की टेंडेंसी आपकी बन जाती है। तो ऐसे में थोड़ा सा ट्राई टू टेक दैट इनपुट। एक आपको पर्ल सूट करता है, येलो सफायर सूट करता है अंकुश। इट इज़ ए गुड चार्ट, ट्राई टू चेंज अ बिट, दिस एवरीथिंग इज गुड, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये तो बात हुई अंकुश की, और अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आपकी बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में, और देंगे आपके सारे सवालों के जवाब भी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए किस्मत के सितारे।